Hello, dear students. I am Sandeep Saran, lecturer physics. Today we discuss on the topic principle of superposition of wave. The topic related to the class 12th and also related to the higher class. Here we discuss how the wave are superimposed to one another and what will be the effect to be seen after their superimpose. हम सब जानते हैं कि दिस इज द लाइट सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स. लाइट सोर्स emit energy that transmit in the form of transverse wave. Transverse wave are of two types. First is longitudinal and second is transverse wave. Sound wave be the example of longitudinal wave, but light, these are the EM wave. We can say that EM wave. They have the transverse nature, but energy transportation due to progressive wave. There are two or more different type of the wave according to the transportation of the energy or transportation or direction of the propagation. There are different way to describe the type of the waves. Here we generally describe the wave in the form of energy transportation. So the wave that transmit energy from one place to another place in the medium are progressive wave, and wave which do not able to transmit energy from one place to another place are non-progressive wave. So these light wave are the progressive wave, and when energy transport from one medium to one place to another place in the medium in the form of transverse wave. Transverse wave have the two things. One is crust and other is trough. What do you mean by the crust and trough? First, we describe the structure of the wave. This is the wave. Wave transmit in the form of sine or cosine wave. This upper part, this upper section is crust, and this lower section is trough. And this is the mean position. Mean position, or here we represent this axis as time axis, and this is displacement axis. Upper part is crust, lower part is trough. Mean, this is the mean position. The portion above the mean position is known as crust, and portion that lie below the mean position is known as the trough. So transverse wave, in which particle vibrate in another axis and energy transportation in different axes, that these axes are perpendicular to one another. So here we describe the superposition, how superposition take place. And one thing is very important here, the vibration of particle in simple harmonic motion. So when two or more wave superimpose to one another, then there are two type of phenomena. This is first wave, this is second wave. This wave has the displacement y1, this have the displacement y2. After superimpose of these two waves, then resultant displacement is equal to vector sum of their individual displacement. This is the resultant amplitude. Y is the resultant amplitude of these two waves, and resultant displacement or amplitude, we can say that this is the resultant displacement. Resultant displacement is equal to vector sum, because displacement is vector quantity. So we can write vector sum of
amplitude, or we can say that vector sum of displacement of individual waves. This is known as the principle of superposition of wave. Here we see that there are two way to superimpose. First is, this is the crust part, this is trough part, this is also crust, this is also trough. When they superimpose, there are two possibility. First possibility, crust fall on crust and trough fall on trough. Second possibility is crust of one wave fall on trough of other, and vice versa. It means that when crust fall on the crust and trough fall on the trough, then resultant wave is as like this. This is the resultant wave. And when crust of one wave fall on the trough, then resultant amplitude is reduced. Here y is equal to y1 plus y2, and this is resultant amplitude. We can say that r, this is resultant amplitude, must be equal to amplitude of a plus b. This wave have the amplitude a, this have the amplitude b. What do you mean by the amplitude? Amplitude mean it is the maximum displacement from the mean position in upward or downward direction. This is the mean position, this is the wave. This point have the maximum or farthest distance from the main position. So this maximum displacement from mean position is known as the amplitude. So here two wave superimpose in this way. Here crust fall on the crust and trough fall on the trough. Then resultant amplitude must be increases, and that is equal to r is equal to a plus b. If crust fall on the trough, then this is the resultant amplitude. Here resultant amplitude is the difference between the amplitude of two individual wave. So these are two phenomena in case of the superimposition, but there are different phenomena also take place. We discuss as, let us consider if source generate or produce light wave. First case है source produce light wave of equal frequency. They superimpose and give the phenomena interference. This is very important topic. We discuss here the phenomena of superimposition of two light wave, that is known as the interference. And second phenomena for sound wave of slightly different frequency and superimpose, give the phenomena is known as beat. This is the beat. So there are two phenomena. First is we can say that interference, and second we can say that beats. And third phenomena is two wave of same amplitude but are moving in opposite direction in same phase, that is stationary wave. Stationary wave mean when two wave of equal magnitude or equal frequency are moving opposite to one another, when they superimpose, then resultant amplitude became zero, and that type of wave is known as the stationary wave. These are the some phenomena related to this
Here we discuss first question is that when two wave superimpose, then they form a new wave. Let us consider two wave as y1 is equal to a sine omega t and y2 wave have the amplitude b sine omega t plus phi. Here a and b are their amplitude omega be the angular frequency and phi be the phase difference between them. After superimpose then resultant wave y is equal to y1 plus y of 2 and we add these equation as a sine omega t plus b sine of omega t plus of phi. Here phi is phase angle. We can write as a sine omega t plus b. We can write down the or expand the formula of sine. It becomes sine omega t cos of phi plus cos omega t sine of phi. This is the formula of sine a plus b. Sine a plus b is sine of first angle cos of second angle, sine of first angle cos of second angle plus cos of first angle sine of second angle. This is the formula we apply here and rewrite as a sine omega t. This b multiplied with this, it became b cos phi sine omega t and b also multiplied by this b sine phi and cos omega t. We take the common from here sine omega t and remaining part is cos of phi. It becomes sine omega t and we write here as b sine of phi cos omega t. This is the equation. Here we rearrange in this way. Let us consider, I will write here, let a plus b cos of phi is equal to cos of theta, r cos of theta, we write as, and b sine of phi we consider as r sine of theta. This is first equation and this is second equation we consider. We let these as like this. Here r and theta be the constant. R and theta be constant. And r is known as the amplitude and theta be the phase angle. We put these value here and we get as y is equal to, this became a plus b cos theta, we write as r cos theta and sine omega t is here plus b sine phi is equal to r sine theta, r sine of theta and cos omega t. We take common r and it became r into remaining part is r sine omega t cos of theta plus cos of omega t sine of theta, and we rearrange as y is equal to r. This is the sine omega t cos theta plus cos omega t sine theta. This is the formula and we compact this formula as sine of a plus b omega t plus theta. This is the equation of new way. This is the equation of wave. And here
we proved that when two waves are superimposed, then they give a resultant wave. This is the question here, and question I will write here as when two wave superimpose to one another, they also give resultant as a wave. This is the question. You can take the screenshot. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि नोट्स बना सकें. मैं इससे थोड़ा सा और आगे पढ़ाता हूं आपको. देखिए अब यहां तक हमने इसको किया है और ये हमने प्रूफ कर दिया. तो रिजल्टेंट वेव में हम वैल्यू निकालना चाहेंगे. ये हमारी रिजल्टेंट वेव है y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट. हम अब r और थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे. ये सिंपल से स्टेप है, आप इसको नोट कर लें. मैं इसको हटाता हूं यहां से. अब हमें ये देखना है कि जो हमारी वेव बनी है उसके एम्पलीट्यूड और ये r और थीटा की वैल्यू कैसे हैं, वो हम इन दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो. स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. स्केयरिंग एंड एडिंग का मतलब यहां है कि पहले हम इनका स्केयर करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे. देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, इसको स्केयर करते हैं a प्लस बी कोस ऑफ फाई का होल स्केयर, प्लस एडिंग भी करनी है. इसको लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, b साइन ऑफ फाई का होल ऑफ स्केयर इज इक्वल टू, इधर हमारा है r कोस ऑफ थीटा होल ऑफ स्केयर प्लस r साइन ऑफ थीटा होल ऑफ स्केयर. देख लीजिए आप, ये वाले पार्ट का स्केयर करके हमने उस साइड रखा है, इधर वाले पार्ट को स्केयर करके इधर लिखा है. मैं अभी इसको हटा देता हूं. ये हमारी इक्वेशन. अब सोल्व करेंगे. इसको सोल्व कीजिए. ये बनेगा a स्केयर प्लस b स्केयर कोस स्केयर फाई, a स्केयर प्लस कोस स्केयर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई प्लस में, अब इसका स्केयरिंग करेंगे तो b स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू, इसका स्केयरिंग करें r स्केयर कोस स्केयर थीटा और इसका स्केयरिंग करें तो r स्केयर साइन स्केयर थीटा. तो यहां आप अंतर रखेंगे थीटा और फाई में. ये देखिए a स्केयर ऐसे का ऐसा प्लस ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है. इनमें आप अगर देखें तो कॉमन आता है b स्केयर और अंदर बच गया कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई प्लस ये वाला पार्ट ऐसे कैसा 2ab कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आ गया r स्केयर और यहां बच गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा. हमें पता है a स्केयर प्लस b स्केयर कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या होता है 1. तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी 1 प्लस में ये बच गया 2ab कोस ऑफ फाई और उधर हो गया r स्केयर और ये वाली टर्म फिर 1 बन जाएगी. तो यहां आप ऐसे देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि आपका r की वैल्यू ऐसे आ गई. अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आई थी हमारी फर्स्ट और सेकंड, उनको डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी हमारी r साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दिया r कोस थीटा से, और इधर हमारी इक्वेशन थी याद हो तो b साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई, इधर थी हमारी a प्लस बी कोस ऑफ फाई. जो कटे उसको काट दो, यहां r से r कैंसिल हो जाएगा
साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये बन गया हमारे पास टेन थीटा। वो वाला पार्ट ऐसे कैसा रहेगा, बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ फाई। ये हमारा टेन थीटा है। हमें निकालना किसको है, थीटा को। तो यहां मैं रीअरेंज करूं, थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, ये आ गया बी साइन ऑफ फाई अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ फाई। हमने क्या किया है, हम इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस टेन को उस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स में चला जाता है। तो हमारे पास फेज एंगल भी निकल गया। ये आपका हो गया फेज एंगल, फेज एंगल। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड। अगर आर और थीटा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम कहेंगे पुट इनटू इक्वेशन थर्ड, देन जैसे ही थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू, आर की वैल्यू पुट कीजिए पहले, आर की वैल्यू ये है तो इसको रखूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई, और इसकी पावर है 1/2। यहां तक रख देंगे। फिर हमने रखना है ये साइन, यहां आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू ये उठा के रख दो, फाई की वैल्यू है टेन इनवर्स बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कोस फाई। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा इधर इसको रख सकते हैं आप, इसको उठा के यहां रख देना है इक्वेशन 3 में, तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। मैं आप अगर इसको नोट कर लिया हो तो मैं यहां रख के भी दिखा देता हूं। मैं उस इक्वेशन को यहां रखता हूं, देखिए y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ये r की वैल्यू हमने रख दी। ये साइन ऐसे कैसा, ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू ये रखता हूं मैं, टेन इनवर्स बी साइन ऑफ फाई अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ फाई। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, रिजल्टेंट इक्वेशन। और रिजल्टेंट इक्वेशन में आप देखेंगे एम्पलीट्यूड हो या आपका फेज एंगल हो, दोनों के दोनों फाई पे डिपेंड करते हैं। ये था आपका सुप्रीम पोज। जब दो या दो से ज्यादा वेव सुप्रीम पोज करें तो एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं। उसका ये मैथमेटिकल पार्ट हमने इंटरफेरेंस का पढ़ा है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब हमने बात की है एम्पलीट्यूड की। मैं इससे थोड़ा सा दूर लेके जाता हूं आपको, इंटरफेरेंस पे चला जाता हूं, और फिर इन इक्वेशन का यूज करके हम इंटरफेरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरफेरेंस एक्चुअल में है क्या, हम पहले इंटरफेरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस एक लाइट की फिनोमिना है व्हेन टू और मोर वेव सुपरिम्पोज। अगर हमने दो वेव हैं, एक वेव ये है, एक वेव ये है, दो वेव है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये टाइम एक्सिस के साथ हमने चेंज किया, और दोनों की दोनों वेव में कि आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, यानी बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। पहली कंडीशन है सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्स से जनरेट होती हैं। दूसरी कंडीशन है ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें और फिर ये सुपरइम्पोज करें। सुपरइम्पोज, अगर ये सुपरइम्पोज करती हैं तो क्या होगा, इनके जो ये एम्पलीट्यूड हैं, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और वेव भी कौन सी, रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव डिफर या डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वेव, यानी व्हेन
two or more wave या two wave having same frequency are traveling in same direction. After superimpose, the resultant wave have the different amplitude as compared to the individual wave, and we can say that amplitude vary. If amplitude different होगा तो इसका मतलब intensity भी vary करेगी. We can say that intensity also changeable. और वो कैसे कर सकती है? ये करस्ट है, ये ट्रफ है, ये करस्ट है, ये ट्रफ है. तो इंटरफेरेंस की दो टाइप है. टाइप कितनी टाइप होगी? टू टाइप होगी. एक कौन सा? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव और एक होती है डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? जब ये वेव सुपरिम्पोज करती हैं तो पहली कंडीशन है कि क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव सुपरिम्पोज ऑन क्रस्ट ऑफ सेकंड वेव और ट्रफ ऑफ फर्स्ट वेव fall on trough of second wave. अगर इस तरह का सुपरिम्पोज होता है कि क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी राइज करेगी. डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसमें क्या होगा? क्रस्ट ऑफ वन वेव, क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव फॉल ऑन या सुपरिम्पोज फॉल ऑन ट्रफ ऑफ सेकंड वेव एंड ट्रफ ऑफ फर्स्ट वेव फॉल ऑन क्रस्ट ऑफ सेकंड वेव. इस तरह का अगर सुपरिम्पोज होता है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे फॉल करे तो इसमें क्या होगा? एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी. अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहेंगे. हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंटरफेरेंस है ये किस तरीके से वेरी करता है और किस तरीके से वेरी नहीं करेगा. इसको हम मैथमेटिकली जानने की कोशिश करेंगे. तो हम एक एक करके इसका मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और मैथमेटिकल पार्ट पढ़ के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंटेंसिटी और कैसे एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं. तो देखिए, अभी हमने देखा कि पहली कंडीशन हमें क्या देखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या रहेगी ये हमें देखना है. मान लीजिए ये हमारी वेव है, इस तरीके से हम इस वेव को मान के चलते हैं. आप समझने की कोशिश करना, इसका बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करना. ये टाइम एक्सिस है और ये आपका एम्पलीट्यूड है. ये आपकी एक वेव है जिसको सुपर इम्पोज आपको कराना है. ये भी इसकी टाइम एक्सिस है. ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है. इसका ये पार्ट क्रस्ट है ऊपर वाला और ये वाला पार्ट है ये ट्रफ है. इसका ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है. समझना इस कंसेप्ट को. मैं डायरेक्ट इसकी कंडीशन बता सकता हूं आपको, लेकिन आपको ये जानना है कि कंडीशन आती कैसे है. पहली कंडीशन देखिए, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है. अगर इस क्रस्ट को इस क्रस्ट पे, एक चीज और ध्यान रखें, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है ये लैम्डा है. पहले ये जान लो एक वेव से, ये आपकी वेव है. पहले ये बेसिक सी चीज जान लें आप. यहां से चला है ये और ये कंप्लीट साइकिल यहां हो गया इसका. एक कंप्लीट साइकिल को जितने टाइम में कंप्लीट करे वो इसका टाइम पीरियड होता है. ये वैल्यू टी होगी, यहाँ वैल्यू t/2 है और ये 0 है. यानी ये हाफ लाइफ टाइम है, हाफ टाइम है और ये कंप्लीट टाइम है. एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये
उसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल कितने कंप्लीट किए वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां से यहां कितना हो गया इसका, यहां तक ये लैम्डा वेवलेंथ है। दो आ जाए तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसे चलेगा। अब देखिए क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर फॉल कर जाए तो इसका मतलब यहां पर आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जिसको आप पाथ डिफरेंस शब्द कह लो, पाथ डिफरेंस, डेल्टा की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। कब 0 होगी, जब ये फर्स्ट पॉइंट पे यहां से यहां तक अगर आपके फर्स्ट पार्ट में ये सुप्रीम पोज करे, यानी पहले क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रप पे ट्रप फॉल करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 0। दूसरे केस में ये फर्स्ट है, अब यहां आ जाए, ये पहला क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे मान के चलेंगे। पाथ डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू, अगर ये क्रस्ट पहली पे ना फॉल करे, ये दूसरी पे फॉल कर जाए, यानी ये क्रस्ट यहां फॉल करे, ये वेव ऐसी कैसी उठाओ यहां रखो, तो कितना अंतर आ गया इन दोनों में, लैम्डा का। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा का, क्योंकि ये क्रस्ट यहां फॉल करेगी तो इतनी वेव से आगे जाना पड़ेगा, तो इन दोनों में यानी इस वेव के कंपैरिजन में इसने इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है। तीसरे केस में आ जाओ, पाथ डिफरेंस डेल्टा, यानी अब ये थर्ड क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, ना तो यहां इसने फॉल किया ना यहां फॉल किया, ये जाके डायरेक्ट यहां फॉल करती है, तो इतना डिफरेंस बचेगा। और ये कितना हो गया, लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा। आगे जाएगी तो इस पे अगर फॉल करेगी तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा। तो क्या मिला हमें यहां से कि क्रस्ट पे क्रस्ट को फॉल करना है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन होगी, पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डैश डैश, और अगर इसको आप कंप्लीट लिखो तो n लैम्डा। पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, n लैम्डा, और n की वैल्यू 0 1 2 3 और n तक चली जाएगी। समझ में आई ये कहानी कि अब किताबों में क्या होता है, ये लिखा मिलेगा पाथ डिफरेंस अगर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 या n लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्यों होगा वो हमने यहां से जानने की कोशिश कर ली कि कोई भी वेव है ये, इस वेव पे सुप्रीम पोज कराना है आपको, सुप्रीम पोज इस वेव को कराना है, तो क्रस्ट 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 पे इस क्रस्ट को सुप्रीम पोज या तो यहां करा सकते हो या यहां या यहां यहां या यहां। अगर यहां क्रस्ट पे फॉल कराओगे क्रस्ट को इस तरफ पे तो यही पाथ डिफरेंस 0, इस पे कराओगे तो लैम्डा का डिफरेंस, इस पे कराओगे तो 2 लैम्डा का, आगे कराओगे तो 3 लैम्डा का। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा की वैल्यू है n लैम्डा होती है, ये याद रखें। अब इसी कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए। सेकंड कंडीशन हमारी है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, यह आपकी वेव है, हमने एक वेव ली ऐसे, इस तरीके से इस वेव को बना लीजिए आप, और वेव की स्ट्रक्चर यही है सेम, क्रस्ट ट्रफ, ये वेव की स्ट्रक्चर है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ 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 और ट्रफ, लोअर पार्ट ट्रफ अपर पार्ट क्रस्ट, ये आपकी वेव है, ये क्रस्ट है ये ट्रफ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव, ये वेव की क्रस्ट इसके ट्रफ पे और इसकी ट्रफ इसके क्रस्ट पे फॉल करनी चाहिए। पहले केस में देखो, पहला अगर केस लें तो ये क्रस्ट यहां आनी चाहिए और ये ट्रफ यहां आनी चाहिए, तो वेव यहां आएगी, ये ऐसे वेव बनेगी आपकी। तो कितना गैप बचा है, इतना, यहां से यहां, और ये क्या है λ/2, कितना डिफरेंस है, इस वेव को यहां आना पड़ेगा, और जब ये वेव यहां आएगी तो इतनी आगे निकल जाएगी इससे, और इतनी आगे निकल, और 3 पार्ट, एक निकल गई, यानी यहां से यहां तक का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 λ/2 और λ/2, कितना हो गया 3 λ/2। तो सेकंड नंबर पे 3 λ/2 संभावनाएं बनती हैं। अगर ये वेव यहां इस ट्रफ पे ना सुप्रीम पोज करके इस ट्रफ पे सुप्रीम पोज कर जाए इस तरीके से, तो यह इतना गैप बढ़ेगा,
यहां से लगकर यहां तक का डिफरेंस आया होगा। कितनी लूप आई, 1 2 3 4 5, तो कितनी होगी 5 लैम्डा बाई 2, क्योंकि आधी लूप है जो, यानी एक सिंगल क्रस्ट कह लो या एक सिंगल ट्रफ है, वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ लैम्डा बाई 2 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 इतनी आगे निकल गई है, यहां से मिलनी चाहिए थी, जबकि ये यहां जाके मिली है, इस ट्रफ के ऊपर इसने सुपर इम्पोज किया, तो ये कितनी होगी 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, और आगे वाली पे मिलेगी तो 7 लैम्डा बाई 2। तो हम इसको जर्नल मेथड में क्या कह सकते हैं, 2n-1 लैम्डा बाई 2, और यहां n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 n तक हो सकती है। तो आपको रटना नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आए तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आए तो 2n- या प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे n की वैल्यू, और माइनस लिखेंगे तो आपकी 1 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ये आप समझ गए होंगे। एक फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस और रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। ये आपका फॉर्मूला होता है। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम कन्वर्जन कर सकते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। अभी देख लीजिए, इसके लिए देखिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बोलते हैं जिसको। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, पाथ डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा, यहां रख के देखिए, एन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। इस 2 पाई को इधर ले आओ, लैम्डा से लैम्डा काट दो तो कितना बनेगा 2n पाई, ये इसके लिए बन जाएगा। अब नीचे वाले के लिए देखें, हम लिखते जाना भाई साथ साथ। इसके लिए अगर फेज डिफरेंस निकालना हो तो फेज डिफरेंस बराबर है, यहां रखो, देखो अब एन लैम्डा की जगह क्या लिख दूंगा, फेज डिफरेंस कितना है, ये रहा 2n-1 लैम्डा बाई 2। देखिए लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 काट दो, ये पाई इधर चला जाएगा, तो कितना बनेगा 2n-1 इंटू पाई। ये इसके लिए फेज डिफरेंस हो गया, ये इसके लिए फेज डिफरेंस हो गया। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बारीकी से, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, और फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है। अब हम आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें कि कैसे कैसे हमें काम करना है। देखिए अभी हमने दो वेव को सुप्रीमपोज किया था, और जब दोनों वेव को हमने सुप्रीमपोज किया तो हमें कुछ फॉर्मूले मिले थे, वो फॉर्मूले हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम आसानी से प्रूव कर लें। वी नो दैट आप पेज पलट के देखें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर आया था जो हमारा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाइव, और इसका अंडर रूट आया था, यही था, ये था एम्पलीट्यूड। और फेज एंगल आया था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा यानी फाइव अपॉन ए प्लस कोस ऑफ फाइव, ये आया था। पहला केस लेते हैं हम, इफ बोथ वेव आर इन सेम फेज, इसका मतलब हो गया फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, सेम फेज में है और
या फेज डिफरेंस फाई 0 कह लो, या ये कह लो इफ बोथ वेव आर इन इफ बोथ वेव हैविंग फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो 0, देन आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है, 2ab cos 1 होता है cos 0 की वैल्यू, और ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, और इसको काट दो तो r की वैल्यू a प्लस बी, यानी दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल हो जाएगी। फाई की वैल्यू देख लो, फाई इज थीटा की वैल्यू फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b sin 0 अपॉन a प्लस बी cos ऑफ 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, तो उनके बीच में भी ये हो जाएगा। दूसरा केस हम यही ले सकते हैं, दूसरे केस में हम ये कह दें कि इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 90 डिग्री, देन अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाए तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 और अंडर रूट, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और आप इसको देखें, यहां वैल्यू रखें, फेज डिफरेंस निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन 90 अपॉन ए प्लस कोस ऑफ 90। हमें पता है कि tan इनवर्स बी साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो b अपॉन ए थीटा बन जाएगा। और तीसरा केस और ले लेते हैं कि फेज डिफरेंस अगर 180 हो जाए, मैं तीसरा केस यहां बना देता हूं। तीसरा केस है इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 180 डिग्री, देन तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू आप सब जानते हैं -1 होती है, तो 2ab का रूट हो जाएगी, और ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट काट दो तो r की वैल्यू a माइनस बी उनके फेज जो एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगी, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। ये इतनी कंडीशन आप लिख सकते हैं इसकी, कि ये आपका देखोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये वाली केस कंस्ट्रक्टिव की है, ये वाला केस जो थर्ड केस है ये डिस्ट्रक्टिव का इंटरफेरेंस का केस है। यहां तक इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी चीज को आप इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहे, और एक बात और बता देता हूं, ये अगर फेज डिफरेंस 0 है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है जब उनके बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसी चीज को अगर इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें कि इनकी इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भी हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं इन तीनों केस के लिए। तो कैसे सोल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। वो कैसे देखेंगे हम ये देखते हैं कि वी नो दैट एम्पलीट्यूड R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई का अंडर रूट था, इसका अंडर रूट, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ 5, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब हमें इस बात का पता है वेव के लिए कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। हम ऐसे कह सकते हैं फॉर फर्स्ट वेव, फॉर फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है और इसका एम्पलीट्यूड हम क्या, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा और एम्पलीट्यूड था A। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A है, सेकंड का B है। फॉर सेकंड वेव लिखो, सेकंड वेव I2 इंटेंसिटी नाम दे दो और वो हो जाएगी KB का स्क्वायर। और फॉर रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव के लिए फाइनल इंटेंसिटी I मान लो K और रिजल्ट एम्पलीट्यूड है R स्क्वायर। ये तीन कंडीशन होगी। इस इक्वेशन को आप एक इक्वेशन कह दो, यहां से A स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू, सारी वैल्यू उठा के रख दो इसमें। देखिए पुट इनटू फर्स्ट इक्वेशन, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे तो कैसे पुट करोगे, फर्स्ट R स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यहां से ये K इसके नीचे आ जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या बन गया I अपॉन K। A स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, A स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, K इसके नीचे आ जाएगा, ये हो गया I1 अपॉन K, प्लस B स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, क्या बन जाएगा I2 अपॉन K। टू A की वैल्यू निकालो, ये A स्क्वायर की वैल्यू है, यहां से A की निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, रूट ऑफ I1 अपॉन K, और ये आ जाएगा रूट ऑफ I2 अपॉन K और कोस ऑफ 5। ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। ये क्या बन गया देखिए, I अपॉन K, यहां से K कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन K कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ तो I1, यहाँ I2, यहाँ हो गया 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ 5। देखिए रूट के और रूट के की पावर हाफ ये है, हाफ ये है, नीचे है दोनों, मल्टीप्लाई करोगे तो k की पावर 1, और k हमने कॉमन ले लिया, इस k से इस k को काट दो, और I की वैल्यू है जो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ 5, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाएगी। समझ में आ जाएगी ये बात। इसको आप साथ साथ लिखें, नोट करें इसको कॉपी में, और नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो फिर देख लें। अब देखिए हम जो चीज चाहते हैं, तीन कंडीशन बनाता हूं इससे मैं, वो तीनों कंडीशन हम देख लेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। यहां तक मैंने इस इक्वेशन को ले लिया। पहला केस मैं बनाता हूं कंस्ट्रक्टिव के लिए। फर्स्ट केस है फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव फाई इज इक्वल टू 0, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, यानी दोनों की दोनों सेम फेज में है, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ जाएगी, दोनों के केस अगर सेम लेंगे तो। अब क्या बन जाएगा, फाई को 0 रखो तो कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, कोस फाई इज इक्वल टू 1, यानी कोस 0 की वैल्यू 1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I ऑफ 2, और इसको सोल्व करके देखो, I1 प्लस I2, इसका भी रूट ले लो और इसका भी रूट ले लो और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर दो, ये I बन जाएगा। ये रूट I का स्क्वायर करो, ये I2 का स्क्वायर करो, ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये, मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम बनती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया रूट I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल ऑफ स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा केस फॉर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव फाई इज इक्वल टू 180, अपोजिट फेज में होंगे दोनों के दोनों,
और अपोजिट फेज में होंगे तो फाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा। हम फाई की वैल्यू को ये रखेंगे तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1 रखें। इस वैल्यू में इंटेंसिटी क्या बन गई, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू -1। और ये फॉर्मूला आप देखेंगे √I1 माइनस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा I, और ये है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहां से हटा दूं, I मिनिमम रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या काम करना है, न्यूमेरिकल कहां से पूछते हैं, I मैक्सिमम टू I मिनिमम, दोनों को डिवाइड कर लो। मैक्सिमम का फॉर्मूला ये रहा, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 और होल ऑफ स्क्वायर। ये मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। एम्पलीट्यूड की फॉर्म में फॉर्मूला कैसे बनता है ये, और I मैक्सिमम टू I मिनिमम इज इक्वल टू √I1 होता है A प्लस B, A माइनस ऑफ B का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड की फॉर्म में है, ये इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी, ये इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इंटरफेरेंस का एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, जिसमें कोहेरेंट सोर्स के बाद हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। यहां तक हमने आज इंटरफेरेंस के मैथमेटिकल पार्ट को हमने समझने की कोशिश की है, और यहां से आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से इंटेंसिटी वेरी करती है, मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो जाएं तो आप देखेंगे, अगर आप दोनों के एम्पलीट्यूड या दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हो जाए तो ये डबल हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, और ये 0 बन जाएगी। वो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहां तक का ये टॉपिक था। इंटरफेरेंस 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं, एक पार्ट और बनाऊंगा, तो आप इसको एक बार रिवाइज करें। यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, मैथमेटिकल पार्ट है ये कंप्लीट। और आपको ये अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजें ताकि सबको फायदा मिले। धन्यवाद।